Kangela, Ketrala, Topasla, Irben, Kangela, Kangela, Shishila. सॉरी इंडिया, हम कास्ट से बाहर जंग नहीं करते। लाइट नहीं आ रही, जंग के लिए कपड़े भी इस्त्री करने हैं। जंग रात में करना यार, दिन में बहुत गर्मी होती है। इंडिया प्लीज पानी खोल दो, मेरी आंखों पर साबुन लगा हुआ है। अनुष्का शर्मा या आलिया भट्ट? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट या प्रियंका चोपड़ा? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण? दीपिका पादुकोण। अगर इंडिया में कोई सफेद बच्चे भी पैदा होता है तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम आता है। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਤਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਿਓ ਤੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਵਲੋ ਜਈਓ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਲ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੀਰ ਐਸੀ ਬਦਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਐਡੀ ਸਖਤ ਬਦਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਟੇ ਮੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਊ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਮਰੋ ਦੇ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੇਖਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੂਤਰ ਪੀਣਾ ਆ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਰੋ ਫਿਟੇ ਮੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡੇ ਜੰਗਜੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਤੇ ਆ ਜੇ ਫਿਟੇ ਮੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਮਰੋ, ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਟੇ ਮੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਚਬਲਾਂ ਜਈਆਂ। इंडिया वालों अगर जंग करनी है तो पहले ही बता दो यार, मैं खामखा अपने फ्यूचर की टेंशन ले रहा हूँ। बता दो अगर जंग करनी है तो। कहता है पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, तेरी भैन भी आई है पाकिस्तान कि तू इथे हमला करेंगे। जिस तरह आपके पास आर्मी है, जहाज है, मिसाइल है, हमारे जहाज में इतवार बाजार नहीं लगता, उसमें भी मिसाइल है, वो भी जाता है, वो भी लगता है, फटता है और फिर फटती है। इंडिया में तो खूबसूरत लड़कियां भी नहीं है, काश रशिया से जंग कर लेते। वसीम अकरम को लाओगे, हम सीधा सीन उसके मुंह में मारेंगे। What do you think? What do you think? सब ये वो लड़ाई है नहीं। आप शोएब अख्तर को वहां से भेजोगे, हम सनी देओल, बॉबी देओल की जो सबसे छोटी बहन है वो मुंह पे मारेंगे आपके। ये जंग मजाक नहीं है सर, मेरी ख्वाहिश है आप जंग मजाक नहीं है तो तुम क्यों इधर हंस रहे हो? मैं हंस नहीं, मैं आपके सारे उस पर हंस रहा हूँ कि आप किस किस्म का अपने एक माहौल पैदा किया। बाय गॉड फैमिली साथ में होती ना, मैं ये इसी राइट जलबख्शी, मैं आपका बहुत धन्यवाद कि आप तशरीफ लाए। न्यूक्लियर छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, न्यूक्लियर है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा यार, ये रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं क्या करूँगा? यार मैं कुछ बोल रहा हूँ। I myself was a soldier। और आप कितनी जगह लड़ी सर आपने? अब तक टोटल विन मिला के 600 अकेले जीती है वो जंगे। ये कहाँ हुई है और नाम ने 400 में 600। अच्छा टीवी पे रोजाना। अच्छा नहीं, मैं समझा आपने असल में 600 कन्वेंशनल जंगें लड़ी हैं। मुंह का फायर। हाँ। दिल्ली लाल किले के सामने वाला प्लॉट मेरा होगा, बाद में आके लड़ना मत मेरे शो के। क्या बात है, बैरिया टाउन मुंबई में प्लॉट की फाइल ले ली है। ले लिए यार, मुझे भी ये दिला दो। एक और चेक करो, इंडिया कहता है हम जंग करेंगे और पाकिस्तान कहते हैं हम कास्ते बार जंग नहीं करते। यानी जंग में भी वही मसले होंगे। एक और चेक करो,
अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो सारा कर्जा इंडिया देगा, शुक्र है हमारी जान छूटी। है ना? बिल्कुल। अच्छा सुनो, डॉक्टर वालों डरो उस वक्त से जब डॉक्टर दिल्ली में बैठकर मरीज को कहेगा इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ। लाहौर ले जाओ, लाहौर है। लाहौर है। एक इंडियन कहता है कि पाकिस्तानी आर सो अनसीरियस, और पाकिस्तानी कहते हैं ये बताएं कि जंग की नमाज कितने बजे है। Damn, that's a good sense of humor. मोहम्मद रिजवान की भी नई स्टेटमेंट आई क्या? है, मुझे डर लग रहा है कहीं जंग में भी लड़ना हो जाए। रिजवान भाई आप बैटिंग में कंसंट्रेट करें। एक और सुने, लोग कहते हैं खुदा के लिए जंग में बाबर और रिजवान से ओपनिंग मत करवाना, वरना ये जंग भी फेल हो जाएगी। एक और सुनना महविश, निकाह करूंगा तो सिर्फ बैरिया टाउन मुंबई की मस्जिद में। अम्मी की बात भी सुन लो कि मगरिब से पहले जंग करके घर आ जाना, मगरिब के बाद इजाजत नहीं है घर से बाहर निकलने की। यानी कि हालात बदलने वाले नहीं है यार। मुस्लिम कमर्शियल बैंक करतारपुर बंद। ओ वाह, ये सुनो, नबील जफर साहब क्या कहते हैं कि भारतीयों कान खोलकर सुन लो, हम पाकिस्तानी सिर्फ अपनी बीवियों से डरते हैं और किसी से नहीं। क्या बात है नबील भाई। एक और सुना, पाकिस्तान का पानी बंद होने पे गुर्जर बरादरी का मामले में न्यूट्रल रहने का फैसला। एक और सुनो, जंग में आधे टाइम तो इंडिया की तरफ से झूमता ही बजते रहना। क्या बात है, बड़ी एंटरटेनिंग जंग होगी। एक और चेक करो, एट दिस पॉइंट इंडियंस शुड बी रेडी टू पे पीटीए टैक्स। इंडिया वाले रेडी हो जाओ, पीटीए टैक्स देना पड़ेगा। हम अकेले क्यों सफर करें। एक भाई साहब कहते हैं कि मुझे तो टेंशन हो रही है कि कॉमेडी शो कपिल करेगा कि ताबिर। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि बीटीएस की आर्मी पाकिस्तान आर्मी का साथ देगी या इंडियन आर्मी का। ओ इंडिया वालों मेरे भाइयों, आप ये मत सोचना कि पाकिस्तानी तुम लोगों से डरते हैं, नहीं। पाकिस्तान में हम 4 कौम रहते हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान। ये हम लोग फारिग नहीं है, आपस में लड़ते। कभी सिंधी और पठान लड़ते, कभी बलोच और पंजाबी लड़ते। यानी कि इन 4 कौमों में आपस में लड़ाई होती है। बाहर मुल्कों से लड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। अपने पाकिस्तान में हम लोगों का टाइम पास हो जाता है। ये क्या न्यूक्लियर प्लांट साला पाकिस्तान सर। हाँ शबरदम श्रीवास्तव कैसा है? फैंटास्टिक सर। सॉरी सर। शबरदम देखो, तुम हमारे बहुत ही होनहार सैनिक हो। थैंक यू सर। इस कारण हम तुम्हारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी डालने जा रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी तुम उठा लोगे? एनीथिंग फॉर माय कंट्री सर। कैसा है शबरदम के कल तुमको पाकिस्तान जाना है। सर कहाँ जाना है? सर अभी तो होके आया ना अभिनंदन। अभिनंदन होके आ गया ना, अब तू हो क्या? सर हम तो वो हाँ मिठाई लेकर आए थे, वो कहा कि हम बाप बनने वाले हैं। अच्छा बाप बनने वाले हो, बधाई हो बधाई हो। जो सीमा के पार हमारा बाप बैठा है उसका क्या करें हम? तो सर वो गौरव को भेज देना, वो सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, कुछ नहीं करता। अरे भैया गौरव तो होकर आ भी गया। होके आ गया का मतलब? हमको तो बताया नहीं उसने। कैसे बताएगा, हॉस्पिटल में है वो। सर हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं सर, हमको ना भेजें सर। लेकिन हमको लग रहा है कि तुम 20 किलोमीटर जरूर करोगे। 20 किलोमीटर सर, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? थप्पड़ खाओगे, घूसे खाओगे, चाय पियोगे, वापस आ जाओगे। तू जंग लड़ने आएगा, इतनी गर्मी में तू जंग लड़ने आएगा। तू आएगा ना जंग लड़ने, आएगा तो रात में आइयो। अगर तू दिन में आया इतनी गर्मी में, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू तुझे चपलों से इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, जिंदगी में याद रखेगा। तू आ जंग लड़ने। ये जिम खाना है, ये मुर्गी खाना है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। ये मुर्गी खाना बना दिया है इन्होंने। आप लोग आतंकवादी। अब हम आपका नलका बंद करेंगे। आप साबुन लगा के, शैम्पू लगा के गलियों में भागेंगे और साफ करेंगे। एक बूंद पानी नहीं देंगे। सिंतास मायदा कैंसिल। इस तरह थोड़ी होगा सर, उसमें इंटरनेशनल गारंटियर्स हैं, उसकी एक तरीका कार है। आप अकेले बैठ के कुछ भी कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इतने एक्सट्रीम होने की आपके पास इंटरनेशनल कोड। ये कुछ खाना है, आपका पता नहीं है, आप मुझे नहीं पता। ये क्या कुछ खाना है? ये तो मोदी जी से पूछे कि कौन सा खाना है, खुद खाना है कि नहीं है। लेकिन वो मतलब आपको देखना पड़ेगा आपका सिक्योरिटी फेलियर क्या है, और उसके बाद आप एक पड़ोसी मुल्क पे इल्जाम भी लगाते हैं और फिर इतने बड़े स्टेप्स। I myself was a soldier। और आप कितनी जगह लड़ी सर आपने? अब तक टोटल विन मिला के 600 अकेले जीती है वो जंगे।
ये कहाँ हुई है और नाम ने 400 में 600 अच्छा टीवी पे रोजाना। अच्छा अच्छा नहीं मैं समझा आपने असल में 600 कन्वेंशनल जंगें लड़ी हैं। मुंह का फायर। हाँ तो ये क्या लोग पसंद करते हैं ये सब? 1 to 1 जब फाइट होगी, जब हमारा सोल्जर टू सोल्जर फाइट होगी, यू विल सी द रिजल्ट। मैं खुद लड़ूंगा अनवर मकसूद से। सर मतलब आपने बंदे भी मार्क किए हुए, यानी कि इंडियन मीडिया ने बंदे भी मार्क किए मैन टू मैन होगा, मैन टू मैन। अच्छा हमारा सीआईडी वाला आपका क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड किससे लड़ेगा? अच्छा लेकिन वो तो सर नहीं रहे ना दुनिया में। तो क्या वो अकेला चला गया तो एपिसोड नहीं होगी? अच्छा और कौन कौन सर किस किस से लड़ेगा आप? क्योंकि आपके मीडिया में जब भी देख रहा था आपने प्लानिंग इसी किस्म की हुई है कि वहां बैठेंगे और वहां ये करेंगे और वहां हमारा शाहरुख खान शाहिद लोधी से लड़ेगा, शाहिद को गिराएगा, सामने हुमायूं खड़ा होगा, उसको गिराएगा। और कितने हैं तुम लोगों के? सर शब्बर जैदी वैसे आपने मिस कर दिया। शब्बर जैदी मेरा मूद शरीक भाई है। मूद शरीक, अच्छा मैं समझा वो क्योंकि दूसरे मामलात भी है ना, वो शरीक भाई है आपका। सोशल मीडिया वॉर में पाकिस्तानी अवाम का भारतीयों को मुंह तोड़ जवाब। ऑल फॉल बकने वाले मोदी के वुज़रा साबिक फौजियों और सहाफियों के जंगी जुनून पर तंज के तीर चला दिए। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। एक सारिफ ने लिखा, सिक्योरिटी इश्यूज है, जंग न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। एक पोस्ट में तंजन कहा गया कि भारतीय आर्मी चीफ सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। एक और पोस्ट में सारिफ ने लिखा कि इंडिया पानी दो, आंख में साबुन चला गया है। एक मंचले ने तो अभिनंदन को चाय पिलाने के लिए भारत से पानी मांग लिया। भारत की गीदड़ भपकियों पर इंतजार करते मिस्टर बीन की तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। मोदी सरकार की गीदड़ भपकियों को पाकिस्तानी अवाम किसी खातिर में नहीं ला रहे, बल्कि मजाक ही मजाक में नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया है। सोशल मीडिया वॉर में पाकिस्तानी अवाम का भारतीयों को मुंह तोड़ जवाब। ऑल फॉल बकने वाले मोदी के वुज़रा साबिक फौजियों और सहाफियों के जंगी जुनून पर तंज के तीर चला दिए। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। एक सारिफ ने लिखा, सिक्योरिटी इश्यूज है, जंग न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। एक पोस्ट में तंजन कहा गया कि भारतीय आर्मी चीफ सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। एक और पोस्ट में सारिफ ने लिखा कि इंडिया पानी दो, आंख में साबुन चला गया है। एक मंचले ने तो अभिनंदन को चाय पिलाने के लिए भारत से पानी मांग लिया। भारत की गीदड़ भपकियों पर इंतजार करते मिस्टर बीन की तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। साथ जंग होती है इंडिया के साथ, आप लोगों का जो ग्रुप है वो क्या करेगा? हमारा ग्रुप ये करेगा कि हम फौज को बोलेंगे आप पीछे हो जाओ और इंडिया के लिए हमारी फौज ही काफी है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं, और मोदी के गान में घुस के फट जाएंगे हम। अरे कितने जहाज हैं आपके पास? हम सारे खुद जहाज हैं, सैकड़ों जहाज हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कराची ना जहाज है हमारे पास। कितने जहाज हैं? लाखों करोड़ों जहाज है हमारे। लाखों करोड़ों जहाज। सबसे महंगा जहाज कौन सा आप? वो है क्रिस्टाली जहाज। फिर उसके बाद जो है उससे थोड़ा हल्का जहाज जो है वो F-16 जहाज है। मैं नहीं मानता। कौन सा? आइस पीने वाला। इंडिया से जंग हो जाए तुम क्या करोगे? बस हम लोग का तो जिंदगी वैसी जहर है, नशा करते हैं, बम पूरा मुंह में डाल कर उनके अंदर ही घुसेंगे। 4 या 5। हाँ बॉर्डर क्रॉस। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, कौमी तराना सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक सर जमीन शाद बाद कुव्वत है वकुव्वत है अवाब मोल सनसनत माई दाता जिंदाबाद। हुकूमत सिंध जिंदाबाद। हुकूमत सिंध। पीपल पार्टी जिंदाबाद। के बारे में क्या कहोगे? इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये कि भाई गुड़ चीनी सस्ता करे। अच्छा इंडिया वाले, तो आपको क्या फायदा होगा?
चाय पीने में थोड़ा मजा आएगा। अबे तो फिर इंडिया से जंग हो जाए, तुम क्या? इंडिया को हमने फतेह कर लिया, आप इंडिया से क्या लेके आओगे? हम इंडिया से मोदी का माल लेके आएंगे। उसका छोटा बेटी लाएगा। उसका छोटा बेटी लाएगा। मजा नहीं आ रहा है। आप क्या लेके आओ? हम पूरा इंडिया ही ले आएगा। अगर इंडिया के साथ जंग होती है, आप लोग क्या करोगे? हम लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे उसके साथ। फौज को बोलोगे पीछे जाओ? हाँ, हम खुद टैंक के नीचे जो है ना बम्बे बांध के उसके टैंके महंगे उड़ा देंगे। क्या कहोगे इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये कि भाई गुड़ चीनी सस्ता करे। अच्छा, इंडिया वाले तो आपको क्या फायदा होगा? चाय पीने में थोड़ा मजा आएगा। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜੋ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਆਪਣੀ 4 ਵਾਲੀ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲਾ ਲੋਫਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ LOC ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ लड़ाई हो जाए उस तो ज्यादा शुगल उधर लाग जाता भैन दी सिरी मीम्स ही मीम। विंग कमांडर अभिनंदन, आपको इतनी इज्जत से हम छोड़कर आए, लेकिन हमने हमारा सर देंगे, आप भी आके चाय रख दिया। यस सर, टीज फैंटास्टिक सर, एकदम बढ़िया। लेकिन आप फिर आ गए, आपको इज्जत राज नहीं है। सर मैं आया था मिशन हर लम्हा पुरजोश पे, ये पीछे ही मेरा जहाज गिरा है। अच्छा, यहाँ पे? अच्छा, पीछे ही मेरा जहाज गिरा है। थपड़े मारते हुए लाया ये शख्स मुझे यहाँ। यस सर, मुझे ये बताया, आपका इतना जहाज जो बार बार गिरता है, एक बार चलाना सीख क्यों नहीं लेते आप लोग? मैं सर बिल्कुल बिंदास एकदम चला रहा था। जब हम चला रहे थे तो मेरे को पायलट ने बोला, जो दूसरे जहाज में था, कह रहा है तू जहाज का हवा चेक कर ले। मैं वहाँ हवा चेक किया तो पेट्रोल भी खत्म था। फिर मैंने उसको लिटा के ना टंकी को थोड़ा सा ये करके स्टार्ट किया है। सामने से हमारे इंडिया में ही एक फैमिली जा रही थी, मैंने कहा अब्बा जी स्टैंड देख लो, आपका वो आ रहा दुपट्टा। मैंने वो किया था, मैं जहाज गिर गया। मैं जरा अपनी मेहमान से बात कर लूं जरा एक वादे पे। क्या? मैं आज तकरीबन 3 चाय पीऊंगा। बासित भाई आपकी चाय भी मैं पीऊंगा, एकदम फैंटास्टिक। आपको 3 नहीं, हम आपको 6 चाय पिलाएंगे। लेकिन हमें फिर भी आपसे किसी आला दर्जे की उम्मीद नहीं है, इस उम्मीद में नहीं पड़ा। हम सिर्फ अपने इखलाक दिखा रहे हैं। पैसे तो नहीं लोगे ना? नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, बल्कि 2 मुझे था कि मैं मजीद चाय लेता वहां से पार्सल जाऊं। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन आपको ये बता दूं, अब अगर ऐसा कोई एडवेंचर हुआ ना तो अब चाय भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको ये फिर आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि दैट द टी इज फैंटास्टिक। मैं तो अपनी गवर्नमेंट को बोला, ये ताश मुआहदा मत करो, क्योंकि आप पानी रोकोगे, चाय कैसे बनेगी और हमारे जहाज ठुकेंगे तो चाय कैसे? वहीं तक रखिए सर। हिमसेल्फ आबादी पॉपुलेशन बम डाउन इज, अपनी आबादी पे, अपने लोगों पे जो उन्होंने बम गिरा दिया। दिस सेड टॉक, ये बड़े दुख की बात है। नॉट दिस वर्क इज, ये काम नहीं करना चाहिए था। First, this pilot head get out is open the door and watch who people is। पहले इसको दरवाजा खोलना चाहिए था, सर निकाल के देखना चाहिए था कि ये किसके लोग हैं। बम डाउन इज, फिर ही बम इनको गिराना चाहिए था। नॉट वॉच इज हु पीपल इज, ये देखते नहीं कि किसके लोग हैं। बम डाउन इज और बम गिरा देते हैं। नो 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 टेबलेट्स वॉकिंग, नो बम हिट, ना बम लगाने चाहिए, ना गोलियां चलानी चाहिए। ओनली टॉकिंग, लव टॉकिंग, और प्यार से बात करनी चाहिए। सिटिंग, फेस टू फेस टॉकिंग, बैठ के ये सामने आमने सामने बात करें। सो दिस इंडियन पीपल लॉसेस एंड पाकिस्तानी पीपल लॉसेस, ये इंडिया के अवाम का भी नुकसान है, पाकिस्तानी अवाम का भी नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। सो अमन चाहते हैं, हैप्पी एंड स्माइल फ्रंट यू हेड गेट आउट फ्रॉम एरोप्लेन एंड डाउन वॉचेज एंड बम डाउन इज। पहले लोगों को देखो, दरवाजा जहाज का खोलोगे, किसके लोग हैं, कौन से लोग हैं, फिर वही जब कोई बम गिराए। ठीक है, सो आई लव यू, ऑल टाइम हैप्पी एंड ऑल टाइम स्माइल इज, खुश रहें, आबाद रहें।